हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन and you are just trying to stay home and use the protocols of safety, your security, follow the rules. Okay, so with this wish, let me introduce myself. This is Virendra, your computer teacher, and I am here to give you most important lecture on computer languages. स्टूडेंट्स, आप सभी इस समय अपने घर पे रह रहे हो। आप घर पे रह करके ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश कर रहे हो। आप सभी टीचर आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आप कि इस समय चैप्टर 1 कंप्यूटर लैंग्वेजेस ये चीज हमारा चल रहा है। एंड आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग, दिस वीडियो बिलोंग्स टू क्लास 6 स्टूडेंट। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, chapter 1 computer languages is there, and in the computer languages you have to understand many things. Likewise, you are just small kids, and right now from 6 you are able to understand about programming languages. Likewise, if you see the syllabus of your book, you are able to understand the Python is just like a programming languages, and you have to study in this session. Okay students, so in the context of that, in the chapter 1 it's a one kind of base for that programming language. Students, in this video you are trying to understand what the program is, what is programming, what the programmer is, okay, how the programming is developed, okay, what are the different generations are there. Okay, these topics we're going to discuss, right? But students, please ensure that you are staying home, okay, and when you're staying home, try to make use of this most precious time. In this precious time, you have to use your own intelligence. Don't waste any time. Try to use the technology, and with the use of technology you are able to understand many more things. Right students? So with this wish, I just want to show you the lecture of this video on the PowerPoint presentation. So without wasting any of the time, let's come to the PowerPoint presentation and just try to elaborate each and everything what I have taught here, what I have given the point, what I have given the points in this video. Okay, so please come to the PowerPoint presentation. We'll study one by one to the each and every slides. Okay, please come. Okay students, now I'm going to start the video. First of all, you just going to know about what topics are going to study in this video. First of all, in this video I'm going to give you the introduction of computer language. Then we'll try to understand the how many types of generations are there. Like first generation, it is also called machine language generation. Second generation language, in this assembly language are used. Third generation language, fourth generation language, fifth generation language, and one more topic we're going to discuss, translator programs. So right now I have tried to give the details in two parts. This is the video number 1, that is you can say part 1, and in this we are going to cover introduction and two generations. Two generation is first generation as well as second generation. Okay, so now we are coming to the next slide to have the details about introduction. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, अगर तो काम करवाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो हम तो इंस्ट्रक्शन अपनी ही भाषा में देते हैं, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज में ही देते हैं।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो हमारी बात समझ जाए? इसका आंसर होगा नो। कंप्यूटर कभी भी हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है नहीं समझ पाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम कम्युनिकेट करें, हम कंप्यूटर से कैसे हम बात करें, कैसे इंटरेक्ट करें हम। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन अ लैंग्वेज, in that language which is understandable by the computer. So we need to give the instructions to a computer in a proper language, and that language should be understood by the computer. So computer needs the step by step instruction to perform the any kinds of action. कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कंप्यूटर की हेल्प से हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देंगे, और वो जो इंस्ट्रक्शंस है किसी न किसी लैंग्वेज में होंगे वो, तो उसको स्टेप बाय स्टेप देंगे इंस्ट्रक्शंस ताकि वो आपके काम को कर सके वो। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। आपको याद रखना पड़ेगा कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है, और वो लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। आप कहिए, ये भी कह सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और वहां पर कुछ नई बात को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम केवल 3 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला, प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब हुआ कि जब आप इसको समझने से पहले, आपको मैं प्रोग्राम समझाने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ टिप्स के बारे में, जिससे कि प्रोग्राम का जो मतलब है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप मम्मी के साथ किचन में हैं आप, ओके, यू आर जस्ट स्टेइंग विथ योर मॉम इनसाइड द किचन, and some guest will come at your home, and at the same time your mother is trying to make the tea for that guest, right? So what she will do, try to make a note in a paper. Step number 1, she will try to put the pot on the gas burner, right? After that, step number 2, she will put some ingredient into it. She will put some ingredient into it like milk, sugar, tea leaves, ginger, okay, cardamom. These things are getting inside into the pot and with some water. Now after that it will boil. Now what will be step number 3? She will filter the tea in a cup and serve to the guest. So right now I have collected 3 steps. 1, 2, 3. These 3 steps are required to complete the task. The task is how to make a tea. In the same way, if you talk about the program is whatever the instructions are written in a particular language, that what we are going to perform by the computer, what to do. कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, जिससे कि हेल्प से कंप्यूटर काम करेगा, उसे ही हम कहेंगे प्रोग्राम, राइट? चलिए एक बार और हम बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग क्या है। Whenever you are writing the programs in a particular computer language, that process is known as programming, right? मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को लिखने की कोशिश करते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वही प्रोसेस कहलाएगा प्रोग्रामिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इमीडिएटली आप मेरे से कांटेक्ट करिए। चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोग्रामर। Programmer, they are the persons who create the program for you, who create the powerful applications for you. यानी कि प्रोग्रामर वह पर्सन होता है जो आपके लिए एप्लीकेशंस को क्रिएट करता है। वो क्या करेगा, डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपके लिए इंस्ट्रक्शंस बनाएगा, आपके लिए प्रोग्राम्स लिखेगा, आपके लिए एप्लीकेशंस बनाएगा।
और वो आप जब एप्लीकेशन बन जाएगा तो वो पर्सन को दे देगा कि आप यूज कर सकते हैं आप। तो प्रोग्रामर दे आर द पर्सन्स हु आर गोइंग टू मेक द पावरफुल एप्लीकेशंस फॉर यू इन अ डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या कंटेंट्स हमें मिलने वाले हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके बारे में। अब हम यहाँ पर जो जनरेशन से थोड़ी सी उसकी बात हम करेंगे। अब देखिए एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, एज वी नो दैट इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was done over the years and each stage of development has made the programming easier for programmers as it become powerful and user friendly। अब आपको मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर प्रोग्रामिंग की जो शुरुआत है वो एक बार में नहीं हुई, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुई। यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो एक स्टेज है, एक जो समय है, उस समय को कहा गया जनरेशन। ठीक है, जब प्रोग्रामर आपके लिए प्रोग्राम बनाता है तो ये कोशिश करता है कि वो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, वो एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली का मतलब जो आपके ऑप्शंस हैं, जो बटन्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से हों जिसको ईजिली आप समझ सको। अब जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप भी तो एक एप्लीकेशन है, किसी न किसी ने तो इसको भी बनाया होगा। ठीक है, अब इसको इतना इजी टू अंडरस्टैंड बनाएंगे कि कोई भी इसको, एक बच्चा भी यूज़ कर सकता है, एक बड़ा भी यूज़ कर सकता है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, यानी जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम प्रोग्रामर ने बनाए हैं। और उस समय को, जब प्रोग्रामिंग में जितना समय लग रहा है या उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को जिसमें कि आपको प्रोग्रामिंग ने डेवलप किया गया है, उसी समय को हम बोलेंगे जनरेशन। जैसे पहले जनरेशन में शुरू में जो वहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, फिर इसके बाद धीरे धीरे मशीन लेवल लैंग्वेज जो है उसको और अपग्रेड किया गया, फिर आपका आया यहाँ पर असेंबली लेवल लैंग्वेज, फिर इसके बाद और भी अपग्रेड किया गया, फिर बहुत सारे धीरे धीरे करके लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और आज के समय में अभी इसमें 21st सेंचुरी हम यूज़ कर रहे हैं। इन द करेंट सिचुएशन वी आर यूजिंग मेनी काइंड्स ऑफ ऑपरेशन, मेनी काइंड्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, ये सब क्या है? ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जनरेशन होता क्या है, व्हाट इज द जनरेशन। तो यहाँ पर जनरेशन का मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट फेजेस है, जो डिफरेंट स्टेज है डेवलपमेंट, जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको जो हम डेवलप कर रहे हैं, उसके जो डिफरेंट फेजेस है, जो समय है, उसी को हम कहेंगे जनरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आपके जो दादाजी हैं वो किस जनरेशन में, तो बोलेंगे पापा के पिताजी, यानी आपके जो फादर हैं, फादर के भी फादर, तो उनकी जनरेशन हो जाएगी। अब उनका भी तो कोई एक ड्यूरेशन है, ठीक है, तो वो ड्यूरेशन कहलाएगा जनरेशन। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिफरेंट फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड जनरेशन। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा आपको, और इन केस अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कांटेक्ट करें आप। ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। ओके, चलिए, इस विश के साथ अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमारे पास टोटल 5 जनरेशन्स हैं, जिसमें से फर्स्ट जनरेशन में आपका मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ हुआ था, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुआ था, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुआ था, ठीक है, फोर्थ में वेरी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुआ, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ। इतनी सारी चीज़ें हैं, जिसमें से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में केवल पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी हैव केम हियर फॉर नेक्स्ट, okay, that is machine level language, and this machine level language comes in first generation language, right?
अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या क्या खास बात है, इसमें कौन कौन सी बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बात बता दूं, आपको ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज को समझ पाता है, वो है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या क्या यूज होगा, 0 इस्तेमाल होता है और 1 इस्तेमाल, इसी को हम बाइनरी लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं हम। तो 0 का मतलब क्या हुआ, ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। तो जैसे मान लीजिए कीबोर्ड की हेल्प से आपने 5 एंटर किया, जब आप 5 को इंटर करेंगे आप, तो कंप्यूटर 5 नहीं समझ पाएगा, वो क्या करेगा, उस 5 को बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा। ठीक है, चेंज करने के बाद वो अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करा रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो आपकी जो आंसर होगा वो आपको आपकी भाषा में ही आपको मिलेगा, वो आपको आपकी भाषा में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या करेगा वो, कंप्यूटर को क्या करेगा, जो आंसर है उसको भी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद आपको जो रिजल्ट है आपकी ही भाषा में आपको दे देगा। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पर मशीन लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहने के पीछे जो रीजन है वो एक रीजन है, मशीन डिपेंडेंट। यहाँ पर ये जो जनरेशन था, आप सारे ही काम मशीन से कर रहे हैं, आप सारा ही काम कंप्यूटर से कर रहे हैं, इसीलिए इस लैंग्वेज में कहा गया है कि ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है, मशीन के ऊपर टोटली निर्भर है ये। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, और फिर हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, वेरी हाई स्पीड, यस, यानी कि यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर से काम होगा वो बहुत तेजी से होगा। सेकेंड है आपका लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी कि जब आप कोई काम करेंगे तो उस समय मेमोरी का जो यूज होगा कम से कम होगा, मेमोरी का जो यूज होगा वो कम से कम होगा। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अब डिसएडवांटेज में क्या क्या चीजें, डिसएडवांटेज मतलब होता है क्या क्या नुकसान है, एडवांटेज मतलब क्या क्या फायदा है। देखिए क्या क्या नुकसान है, कुछ पॉइंट्स में मैंने आपको बताया है। पहला, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग इज वेरी टफ, यानी कि अगर आपसे बोलूं कि आप मशीन लेवल लैंग्वेज को आप समझो, एक ह्यूमन बीइंग समझे, उसको समझे पढ़े, तो बहुत टफ काम है ये। दूसरा, यहाँ पर टाइम कंज्यूम, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग होगी वो प्रोसेसिंग में टाइम जरूर कंज्यूम होगा। नेक्स्ट, difficult to write the programs in machine language, yes, it is too tough. If you want to write any program in machine level language, it is too difficult. ठीक है, और जब आपका प्रोग्राम बन जाएगा, प्रोग्राम बनने के बाद अगर आपको डीबग करना है, तब डीबग मतलब होता है एरर्स को रिमूव करना। आप याद रखिए, बग, BUG, बग, बग मतलब होता है एरर्स, डीबग मतलब एरर्स को रिमूव करना। तो अगर आपने प्रोग्राम बना भी लिया तो उसको डीबग करना है, एरर्स को रिमूव करना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाना भी टफ है और उसको डीबग करना भी मुश्किल है। लास्ट देखिए, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन इन वन कंप्यूटर मे नॉट रन एग्जीक्यूट ऑन अनदर कंप्यूटर, यानी कि जिस कंप्यूटर प्रोग्राम को आपने एक मशीन बनाया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे कंप्यूटर में भी रन हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है ये। तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। ओके, विद दिस नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now it's time to have the another generation, that is second generation language, and in this language the assembly languages are used. क्या यूज हुआ है यहाँ पर, assembly language। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर assembly language के बारे में। यहाँ पर अभी तक आप जो काम कर रहे थे, आप वो क्या कर रहे थे, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, 0 1 का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए भी आपको 0 1 के फॉर्म में ही आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई फर्स्ट जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में अगर कोई काम करना है तो यहाँ पर कुछ कोड का इस्तेमाल किया गया कि अगर आपको जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए छोटे छोटे कोड बना दिए गए। ठीक है, उसी कोड का इस्तेमाल करिए, आपका यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो कोड है उन कोड को कहा गया निमोनिक कोड्स। स्पेलिंग देख लीजिए, NEMONICS, निमोनिक कोड्स।
ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर 0-1 का इस्तेमाल अब नहीं होता है। यहाँ पर इन्हीं निमोनिक कोड्स की यूज से आप अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। इन्हीं को सीधे यूज करिए आप। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 को, इट इज इजी टू वर्क विद बाइनरी लैंग्वेज, इट इज इजी टू वर्क विद बाइनरी लैंग्वेज एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज इट्स एडवांटेज। मतलब ये हुआ इट इज ईजियर टू वर्क विथ इट, मतलब क्या हुआ कि अगर हम बाइनरी लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं हम, तो बाइनरी लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर 0-1 का कोई यूज़ है नहीं, इसलिए यहाँ पर हम केवल निमोनिक कोड्स का यूज़ करके, तो देखा जाए कि असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा काम करना थोड़ा सा ईजी है। ओके, इट इज़ लिटिल बिट ईजियर टू वर्क विथ असेंबली लैंग्वेज इन कंपेरिजन ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, the writing programs in assembly language is time consuming and it is its drawback। मैंने आपको पहले बताया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज का आप जब यूज़ करते हैं तो वहाँ भी देखिए टाइम कंज्यूम हो रहा था, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी टाइम आपका कंज्यूम होगा, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया है, क्यों? क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट ये भी है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो काम करना है थोड़ा सा आपको यहाँ पर टफ लगेगा, लेकिन अगर आप असेंबली लेवल लैंग्वेज पे काम करेंगे थोड़ा सा आसान लगेगा, यही इसका एडवांटेज हो गया। दूसरी चीज़, टाइम कंज्यूमिंग आपका दोनों में है, मशीन लेवल लैंग्वेज में भी है और असेंबली लेवल लैंग्वेज में है, ठीक है। बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पर निमोनिक कोड्स का यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 0 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, if you understand something else in from my video, please don't forget to like and subscribe my channel. Okay, right, so now we are moving forward for the next thing. Okay students, so I hope you have able to understand each and everything what I have tried to taught you. इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है, और यहाँ पर इस वीडियो में केवल और केवल 2 ही जनरेशन्स के बारे में आपने समझा। यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट ओनली 2 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। रेस्ट whatever the generations are pending, you are able to see in next video. Okay, so don't worry about that. I will try to make the video for very soon and just upload it on the YouTube, right? But students, if you understand anything in this video, try to subscribe and like the video, and if you want, you can share this video to your friends also. And one more thing, please don't forget to press the bell icon, because if you press it, you will have the notification of my latest video very quick. आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। So with this wish, I am just hoping you are staying safely at your home and follow the rules of the COVID-19. Stay safe, stay healthy and keep smiling. Thank you so much for attending this video. Thank you.